Hello learners, once again welcome back to NTU Net Paper 2 Education as per the latest syllabus. Once again I am with you. Today we are going to study chapter number 3 A division, in that topic number 7, which is Gordon Allport's personality theory. Without further ado, let's just start with today's session. Up till now what we have studied, we had actually completed growth and development, the concept and differences, principles of growth and development, stages of growth and development, your cognitive processes, elements of cognitive processes, that also we had completed along with the stages of cognitive development. Personality definitions we have completed. Today we are going to learn about the theories of personality. In that आज हम पढ़ने वाले हैं गॉर्डन ऑलपोर्ट्स थियरी. Gordon Allport's theory is also called as trait theory of personality, and the name of the theory, that is trait theory, in which he has suggested some important features which a person's personality emphasizes more about his character. Gordon B. Allport was born in 1897 and he was died in 1967. He was the first personalist theory who adopted trait approach, trait that is focusing upon the features. According to Allport, personality traits are the basic units of the structure of our personality. That means whatever features or uniqueness is there in our feature or in our persona, that is indicating the actual persona of a person. Allport, or you can say Allport, tried to search for these basic units of human behavior. गॉर्डन ऑलपोर्ट की जो ट्रेट थियरी है पर्सनालिटी की, उन्होंने क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में. नंबर 1 कार्डिनल ट्रेट, सेकेंड सेंट्रल ट्रेट, थर्ड इज सेकेंडरी ट्रेट. Let's just understand each and every trait in detail. The very first one, that is cardinal trait. कार्डिनल ट्रेट डोमिनेंटली डिटरमाइंस इंडिविजुअल्स बिहेवियर, यानी कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स वो पर्सन के अंदर आपको देखने को मिलेगी जो कि आप देख सकते हो और तुरंत बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर फीचर ये इंडिविजुअल में डोमिनेंटली है. आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा उसके पर्सोना को एम्फसाइज करता है. वो कैसे ट्रीट हो सकते हैं? कभी कोई बहुत ह्यूमैनिटी हेल्पफुल नेचर का होता है तो वो डोमिनेटली करता है उसके पर्सोना को. कोई अग्रेसिव बहुत होता है, दैट इज ऑल्सो डोमिनेंट. These are major themes of personality. These traits govern a person's complete life. We often understand and recognize individuals specifically for this trait. हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल की पर्सोना है या आप कह सकते हो कि उसकी पर्सनालिटी है, तो वो यही फीचर्स के साथ हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सपोज पर्सन कैसा है तो बहुत ही अग्रेसिव रहने वाला, ये कैसा है तो बहुत ही शांत स्वभाव का, ये कैसा है तो ये बहुत ही आप कह सकते हो झगड़ालू. सो इन दैट वे सम और अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट, दैट इज कार्डिनल ट्रेट इज एग्जिस्टिंग इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. वो पर्सन टू पर्सन अलग हो सकती है, ट्रेट फीचर अलग हो सकता है, लेकिन वो उसके पर्सनालिटी को जस्टिफाई करता है या फिर आप कह सकते हो वो डोमिनेट करता है उसकी पर्सनालिटी को. कार्डिनल ट्रेट, दैट इज प्राइमरी ट्रेट जो होता है, विच मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल, एटलीस्ट वन और टू बट नॉट ऑल, विच वी ऑल में फाइंड इन ऑल द पीपल. कार्डिनल ट्रेट जो है वो पर्टिकुलरली ओवररूल करता है दूसरे ट्रेट को पर्सन के अंदर. Say for example, your aggressive behavior is overruled by your kindness. तो ये जो एग्रेसिवनेस है वो सरफेस लेवल पे होता है, वो डोमिनेंट ट्रेट होता है, वो यूनिक है, जो कि आप कह सकते हो दूसरे में है लेकिन वो उतने प्रोपोर्शन में नहीं है जितना कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में आपको देखने को मिलता है. सो दैट इज कार्डिनल ट्रेट. फिर है सेंट्रल ट्रेट. व्हाट डू वी मीन बाय सेंट्रल ट्रेट? Central traits are some specific traits that prevail in the individual's personality. They are found to some extent in every person, यानी कि कॉमन भी आप कह सकते हो, जो कि सारे पर्सन में देखने को मिलेगा. This basically shape most of our behavior, जैसे कि honesty, dutifulness, anxiety are considered central, which is common among all in every individual. Every one of us to some extent is anxious, जो कि सही है, which means that central trait we can also call it as ordinary trait, general trait, जो कि सब
में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑर्डिनल ट्रेट्स possessed by an individual are called as central trait. Here person's traits may be like anger, helpfulness, shyness, honesty. All this is representing a person's persona, and it is actually available, or you can say it is actually there in every individual up to some extent. So these are called as central traits. I hope you have got clarity about the central trait. Then the third trait that Gordon Allport said is secondary trait. Secondary traits are the traits that are sometimes related to attitudes or preferences. They often appear only in certain situations or under specific situations. If somebody becomes anxious when speaking to strangers or cannot tolerate the anxiety at competitive match, which means कई कई सिचुएशन जब आती है तभी आपको वो ट्रेट इंडिविजुअल में दिखेंगे, एवरीडे बेसिस पे नहीं दिखते. तो दिस इज सेकेंडरी ट्रेट विच मीन्स दैट कभी कभी ही वो पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं ट्रेट, और कभी ही आपको दिखेंगे, जैसे कि चाइल्डिश नेचर, शाइनेस हो गया, एंगर हो गया. वो एवरीडे सिचुएशन में कोई कोई इंडिविजुअल के नहीं दिखता, लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो गई है तो फिर आपको वो ट्रेट वो पर्सन में दिखेंगे. दैट इज ए सेकेंडरी ट्रेट. ऑलपोर्ट्स थियरी ऑफ पर्सनालिटी, उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देख लेते हैं. व्हाट आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑलपोर्ट्स पर्सनालिटी? साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी. As you can see on the screen, Allport has given certain characteristics of psychological maturity, enduring extensions of self, techniques for warm relating to others, emotional security, self-acceptance, realistic perception, problem-centeredness, self-objectification, unifying philosophy of life are the characteristics of psychological maturity. यानी कि ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी थियरी हमें ऑलपोर्ट की ये दिखाती है कि साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी इंसान में कितनी है, तो वो आपको ये सब फीचर से पता चल जाएगा. फिर कहते हैं फंक्शनल ऑटोनॉमी, फंक्शनल फ्रीडम. द पर्सन एक्सपीरियंसेस फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्ट्स फ्रीली एंड विदाउट बीइंग डिपेंडेंट. वो किसी के ऊपर डिपेंड होकर पर्सोना नहीं बनाता, खुद का जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस है, या फिर अपने हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो जो है अपने कह सकते हो पर्सोना या पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे उसकी पर्सनैलिटी उभर के आती है. ही और शी अचीव्स व्हाट दे वांटेड टू अचीव एंड एक्सपीरियंस द फ्रीडम टू डू सो. तो इंडिविजुअल की ये भी एक फंक्शनल ऑटोनॉमी आप इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर्सनैलिटी कह सकते हो. एजुकेशन इम्प्लीकेशन, ये थियरी क्यों इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सेक्टर में? द टीचर कैन नो द ट्रेट्स ऑफ अ चाइल्ड और चिल्ड्रन एंड हेल्प हिम टू डेवलप एंड प्रमोट दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर हिज असेट्स. बच्चे की जो प्रोफिशिएंसी है, स्किल है, एफिशिएंसी है, उसको अगर आप प्रमोट ज़्यादा करना चाहते हो तो ये थियरी इंपॉर्टेंट है. कोई अग्रेसिव बिहेवियर का है तो आप उसको कह सकते हो कि अग्रेसिव नहीं बनना है, या फिर उसको आप उसके डिसएडवांटेजेस समझा सकते हो, उसके बिहेवियर में चेंज ला सकते हो. तो दिस इज हाउ यू कैन से कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो है यूनिक पर्टिकुलर ट्रेट्स, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन से बच्चे का क्या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट है और क्या अच्छी वाली एडवांटेजेस है जो कि उसको उभर के हम अच्छे से आगे ला सकते हैं. अगर हेल्पफुल नेचर का है, वैल्यूज़ में ज़्यादा बिलीव करता है, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन में मानता है, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन है, तो वो उसके फीचर्स को हमें ज़्यादा प्रमोट करना है, उसको री करना है. जो अग्रेसिवनेस है, फाइटिंग बिहेवियर है, जेलेसी है, वो सबको आपको कह सकते हो एज अ टीचर उसको कम करवाना है. सो दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर थियरी इज इम्पॉर्टेंट. फिर कहते हैं एजुकेशन हैज़ टू एक्ट एज अ पॉजिटिव इंटरवेंशन मैकेनिज्म. एजुकेशन है उसको पॉजिटिव मैकेनिज्म या पर्सोना को डेवलपमेंट करने के लिए एजुकेशन एक अच्छा रोल प्ले करता है. इट हैज़ टू स्ट्रेंथन दोज ट्रेट्स विच आर वर्थ वाइल सो दैट द पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड फ्लरिशेज. अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो क्यों ना हम उसको फ्लरिश करें बच्चे में, तो वो इस पर्टिकुलर थियरी से पता चलता है. इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पर्सनैलिटी प्रोफाइल ऑफ अ कल्चरल ग्रुप एंड दस हेल्पिंग टू फाइंड आउट द नेशनल कैरेक्टर. कल्चरल ग्रुप यानी कि कैसे बैकग्राउंड से आ रहा है, कैसा फैमिली बैकग्राउंड है, कहाँ से उसकी अपब्रिंगिंग, कैसी अपब्रिंगिंग है, और इसी तरीके से उसका नेशनल कैरेक्टर यानी कि नेशनल डेवलपमेंट भी पूरे नेशन का आमतौर पे आपको पता चलता है कि ऐसे ऐसे पर्टिकुलर रीजन में ऐसे इंसान है या उसकी पर्टिकुलर कल्चर है, ये ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली वो पर्टिकुलर रीजन, स्टेट या नेशनल कैरेक्टर उस इंडिविजुअल का कैसा है. Teacher designs from program according to the traits of the child. Positive traits should be strengthened and negative should be remedied. नेगेटिव लगे तो उसका सॉल्यूशन लाओ, पॉजिटिव है तो उसको मोर एम्फसाइज करो.
So with this is a wrap for today's session. Thank you so much for listening to me. Do like and subscribe the channel, that is NTU UGC Net Paper to Education. अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे. टिल द नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप अचीविंग. थैंक यू.